Hi, hello, namaste, sat sri akal, केम छो? Once again, welcome back to Ranker channel in the form of DM but English medium group tuition. और मैंने हमेशा आपको बोला है, सब्र का फल मीठा होता है। मीन्स देखो, गुड थिंग्स टेक सम टाइम। हाँ, मैंने सॉल्यूशन में थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम कर दिया है बिकॉज यू कैन सी एंड यू विल सी how much effort I had put in this PPT or in this video. Okay, so can we start? Today we are going to discuss unit test solution of Gujarat Board 9th Science. Okay, so this is unit test number 3 and they had considered chapter number 2, chapter number 14, chapter number 5, 1, 8. Okay, so let's go. Can we start? Okay, so there are mainly 45 minutes for this exam and 25 marks only there. Okay, so first of all, let's say go ahead. Thank you. Let's go. So the first section is section A when they have asked us answer the following questions as directed. So यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का एक मार्क है। तो पहले 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व कर देते हैं। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने बोला था आपको चैप्टर नंबर 5 जब चल रहा था तब भी कि हर एक साइंटिस्ट की हर एक जो भी खोज है ना वो आपको प्रिपेयर करनी है। वो उसमें से कोई ना कोई गुजरात बोर्ड में पूछता ही है। तो यहाँ पे देखो प्रोटोप्लाज्म किसने किया था? जेई परकिंजे। ओके, और वी कैन से ओनली परकिंजे। तो परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म फाइंड किया था। कैसे थे परकिंजे, देखना चाहते हो? ऐसे थे परकिंजे। सो ये जो साइंटिस्ट है परकिंजे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म फाइंड किया है। कैन वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, which physical identity has the unit meter per second square? Okay, let's say meter upon second the square. So basically meter is a distance upon time square, means distance upon time into time. When distance upon time is a velocity and velocity upon time is acceleration. So basically this is the identity, this physical identity which has unit meter per second square is acceleration. What is acceleration? You know, whenever you are making effort for anybody to speeding up or speeding down, it's acceleration. If it is speeding up, then it is acceleration. Then if it is speeding down, then it is retardation. You can see over here that this boy is sliding the car down, so it's having acceleration, and this girl is sliding the car up, so it is retardation. So basically acceleration or retardation, the main concept having the physical quantity, physical identity, meter per second square. Can we go for next question? The third question. So state if the following statement is true or false, and if false kindly rectify the statement. ओके, हमें यहाँ पे क्या करना है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, वो स्टेटमेंट को हमें रेक्टिफाई करके रखना है। और यहाँ पे जो क्लास है वो बियर का नहीं है, कृपया शांति बनाए रखें प्लीज। सो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन नॉट बी सीन विद अ नेकेड आई। उन्होंने बोला है, उन्होंने ऐसा बोला कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है उनको हम नेकेड आई से देख सकेंगे या नहीं देख सकेंगे। देन आई मस्ट से इट इज फॉल्स। वो कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, देखो हम सस्पेंशन किसको बोलते हैं, जैसे कि चौक ले लो, चौक स्टिक को आप पानी में डाल देते हो, फिर पानी में थोड़ी देर रखने देते हो, फिर भी आपको वहां पे सस्पेंडेड चौक के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। हाँ, अगर आप मिट्टी का पानी, यहाँ पे जो है ये मिट्टी का पानी है बेटा, देख लो, तो ये जो मिट्टी का पानी है, ये मिट्टी का पानी देख लो, तो वो भी सस्पेंशन है जिसमें आप मिट्टी को काफी क्लियरली देख सकते हो। हाँ, तो उन्होंने बोला आप नहीं देख सकते, तो फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज ट्रू स्टेटमेंट इज, rectified statement is, particles of suspension can be easily seen with the naked eye. Okay, easy boys. Let's go for the next question. Question number 4. Which of the following factors are not responsible that make the soil? They have asked us 4 questions, so this is MCQ. First number is sun, second one is water, third one is wind, fourth one is polygen. Okay, so this is basically a most important question from the chapter number 14, soil formation and factors affecting the soil formation. So first of all, sun, how sun can affect the factor, how sun can affect the soil formation. So सबसे पहले ऐसा समझ लो कि जो भी सन है, यानी जो भी सूरज है, सूर्य है, उसकी गर्मी से,
उसकी गर्मी से क्या होता है, तो जो भी बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, वो बड़े बड़े पहाड़ सब गर्म होते हैं फिर ठंडे होते हैं, गर्म होते हैं ठंडे होते हैं, उसी वजह से क्या होता है, उसके थोड़े थोड़े पार्टिकल्स टूट के जमीन पे बिखरते हैं, इस तरह से पूरा सॉइल फॉर्मेशन होता है। पानी किस तरह से अफेक्ट करता है, तो जोरदार समझ लो कि जो पानी है ना, वो पानी ऐसे बहता हुआ पानी है ना, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली पहाड़ जो भी होंगे उसके रास्ते में जितनी भी जमीन आएगी वो ऐसे फैलाता जाएगा और सॉइल फॉर्म करता जाएगा। विंड सेम चीज, जहां पानी काम करता है वैसा विंड काम करेगा, फुल स्पीड वाली विंड, तो वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली एक ही काम करता है, हर एक पार्टिकल को ऐसे बिछा दिया जाता है और पूरा सॉइल फॉर्मेशन होता है। सो द नॉट अफेक्टिंग, नॉट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इज ओनली थिंग, दैट इज पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूटेंट है, आप पीछे देख सकते हो पानी में सब जगह पर पॉल्यूशन करता है, पर वो सॉइल फॉर्मेशन में किसी भी तरह से हेल्पफुल नहीं है। ओके, और बेटा देख लो, बहुत सारे लोगों ने सॉल्यूशन ऐसे रफली रैंडमली बना दिया है। और देखो, हमारा मेन गोल बीएम बट इंग्लिश मीडियम का मेन गोल एक ही है कि आपको हर एक चीज को प्रॉपर डिटेल में समझाया जाए। ओके, तो यही बात है, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, हाँ आई एम मेकिंग श्योर वीडियो लंबा है, पर पूरा देखना, काफी कुछ जानना मिलेगा। ओके, सो आंसर इज पॉलिथीन बैग। ओके, कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट? So next one is section B. Answer the following question in short as directed, जहां पे 1 मार्क और 2 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, so question number 5, which of the following substance will show Tyndall effect? इसमें से कौन सा सब्सटेंस है जो टिंडल इफेक्ट शो करता है? टिंडल इफेक्ट पता है ना, मैंने आपको पूरा वीडियो मस्त से भेजा है कि जहां पे लाइट का पूरा पाथ दिखता है वो होता है टिंडल इफेक्ट। ओके, तो कौन से हैं ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन इज सॉल्ट सॉल्यूशन, अनदर वन इज मिल्क, थर्ड वन इज कॉपर सल्फेट एंड लास्ट वन इज स्टार्च सॉल्यूशन। सो इफ वी टॉक अबाउट सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट इज बेसिकली प्योरली सॉल्यूशन, क्योंकि जो भी सॉल्ट है वो सॉल्ट पूरा अंदर मेल्ट हो जाता है, सॉल्यूट हो जाता है, अंदर ऐसे ओगड़ जाता है, मिक्स हो जाता है। ओके, तो उस वजह से क्या होता है, उसमें लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता है। मिल्क में पाथ विजिबल होता है, मिल्क में पाथ विजिबल होता है, सो हमारा आंसर हो जाएगा टिंडल इफेक्ट कौन दिखाएगा बेटा? मिल्क। कैसे, देख लो, तो यहाँ पे देखो, ये जो पानी है या तो सॉल्ट सॉल्यूशन है, यहाँ से लाइट तो चाहिए नहीं है, पर यहाँ पे जो लाइट जा रही है उसका पाथ नहीं दिख रहा है, पर ये जो मिल्की सॉल्यूशन है तो वहां पे लाइट का इस तरह से पूरा पाथ दिख रहा है। सो बेसिकली ये शो करता है टिंडल इफेक्ट। कॉपर सल्फेट सेम सिचुएशन, नहीं दिखाएगा। स्टार्च सॉल्यूशन इज अ सस्पेंशन, स्टार्च माने हमारा आटा, आटा को पानी में डाल के ऐसे घोल दो तो वो इस तरह से पूरा सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो उसमें थोड़े से आटा के पार्टिकल्स है वो इस तरह से सस्पेंडेड रहेगा, तो वो भी टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा। सो यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर है, दैट इज मिल्क, एंड मिल्क इज द ओनली आंसर व्हिच शोस द टिंडल इफेक्ट। ओके, कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट? ओके, क्वेश्चन नंबर 6, नेम द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शन, यानी हमें हर एक ऑर्गेनल का फंक्शन के हिसाब से उसे पहचानना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर हाउस ऑफ द सेल, तो सेल का पावर हाउस किसको बोलते हैं? जो पावर बनाता है, पावर मींस एनर्जी, एनर्जी मींस एटीपी, तो एटीपी कौन बनाता है? तो एटीपी बनाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया अगर एटीपी बनाता है तो इट्स अ पावर हाउस ऑफ द सेल, कुछ इस तरह से था। और हमें रीजन में भी पूछते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, स्टेट द रीजन। ओके, सो यहाँ पे हम रीजन की बात नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज याद रखो कि पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, जो कुछ इस तरह से दिखता है। कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट? चैनल ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, सो यहाँ पे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जो भी चीज को ट्रांसफर करना है, जो भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वन एंड ओनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, न्यूक्लियस में से जो भी चीज को हमें भेजकर जो भी चीज को हमें बाहर भेजना है उसके लिए पूरा एक सरफेस बनाता है, पूरा एक सरफेस बनाता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो सेंटर है इसे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से कनेक्टेड ही होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से क्या करेगा, कोई भी चीज को पाथ देके बाहर भेजेगा। इतनी बात समझ में आ गई? So channel transportation from nucleus to cytoplasm is endoplasmic reticulum. Next one, sac containing digestive enzyme. sac यानी एक तरह से बैग,
तो कौन सी बैग ऐसी है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है? तो वो है हमारी सुसाइडल बैग। सर सुसाइडल बैग, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ आ गया था। हाँ जी, लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। क्यों? क्योंकि उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर देता है। तो लाइसोसोम इज अ sac that containing digestive enzyme। लाइसोसोम कुछ इस तरह से होता है जिसके अंदर ये डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेगा? सबको डाइजेस्ट कर जाएगा, खा जाएगा। ओके, नेक्स्ट, किचन ऑफ द सेल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कई लोगों ने इसका जब वैक्यूल दिया है, जो टोटली गलत है। वैक्यूल इज अ स्टोरेज ऑफ द सेल, वैक्यूल इज नॉट द किचन ऑफ द सेल। एंड हमें देखो कि किचन हम किसको बोल सकते हैं? जहां पे खाना बनता हो। तो खाना कहां पे बनता है? तो ऑब्वियसली लीव में बनता है। लीव में खाना कहां पे बनता है? तो हमें पता है कि भाई जहां पे प्लास्टिड होगा, जहां पे क्लोरोफिल होगा, वही खाना बना पाएगा। तो क्लोरोफिल कहां पे होता है? प्लास्टिड में। प्लास्टिड में खाना बन रहा है, तो प्लास्टिड इज द किचन ऑफ द सेल। समझ रहे हो? हु इज द किचन ऑफ द सेल? प्लास्टिड। कुछ इस तरह से था, याद आ गया? ओके, सो अगेन टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा? मिल्क। कौन पावर हाउस है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन ट्रांसपोर्टेशन है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डाइजेस्टिव एंजाइम तो वो है लाइसोसोम, एंड किचन इज द प्लास्टिड। कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट? So the next question is differentiate between speed and velocity from chapter number 8। हमें पता है स्पीड इज अ स्केलर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर। इजी। सबसे पहले स्पीड का s, स्केलर का s, वेलोसिटी का v, वेक्टर का v। सो स्पीड, स्पीड इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। बेसिकली स्पीड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड इज अ डिस्टेंस अपॉन टाइम, पाथ लेंथ अपॉन टाइम। बट जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों में डिफरेंस है। अगर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो स्पीड मिलता है, अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो वेलोसिटी मिलेगा। समझ रहे हो? डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजिंग है, डिस्प्लेसमेंट इट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। स्पीड इज अ स्केलर, एस एस। ओके, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, वी वी। सो स्केलर है, देखो इट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। स्पीड कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। हाँ, अगर इनिशियल रेट पे सोचो कि जहां पे टाइम भी जीरो है, डिस्टेंस भी जीरो है, तब स्पीड जीरो है। पर एक बार जब स्पीड शुरू हो गई, मींस एक बार जब उसने डिस्टेंस ट्रैवल करना शुरू किया, तो जब हम बात करते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, सो स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव। सो यहाँ पे क्या होता है? वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, वेलोसिटी कैन बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव। स्पीड, स्पीड इज अ स्केलर, सो बेसिकली स्पीड इज द वेलोसिटी, स्पीड इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज अ डायरेक्टेड स्पीड। ओके, ये पॉइंट आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, ये इतना काम का पॉइंट नहीं है। बट स्पीड मे और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी, बट अ बॉडी में possess डिफरेंट वेलोसिटी बट द सेम स्पीड। क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर, और डायरेक्शन हर पॉइंट पे स्पीड तो सेम हो सकती है, डायरेक्शन चेंज करेगी, जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Speed never decrease with time for moving body, it is never zero। Velocity can decrease with time for moving body, it can be zero। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है पर डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है। यूनिट, बोथ यूनिट इज मीटर पर सेकंड। सो अगेन आंख बंद करके पूरा सुन लो। स्पीड चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, velocity change of displacement upon time, it's a scalar, it's a vector, it cannot be negative or zero, it can be negative, positive or zero। speed's unit is meter per second, velocity's unit is meter per second। speed may or may not be equal to velocity, but velocity के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे स्पीड सेम हो सकती है पर वेलोसिटी अलग भी होती है। सो ये हो गया हमारा स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस। बड़े बड़े सवाल अभी बाकी है, तो आगे चलते हैं बेटा, लेट्स गो। सो द 8th क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर प्रैक्टिकली यूज्ड टू स्टॉप और कंट्रोल सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन यानी जो भी हमारी जमीन है उसका इरोजन होना, उसका खत्म होना पानी की वजह से। जैसे कि अभी देखो अचानक से बाढ़ आ गई तो सब जगह पे से इस तरह से पानी ऐसे धस मस जा रहा है, तो उसमें क्या होता है बेटा, पानी साथ में जमीन को भी, सॉइल को भी ले जाता है। सो विच मेथड इज यूज्ड टू स्टॉप और कंट्रोल द सॉइल इरोजन?
सो द रिमूवल, पहले तो सॉइल इरोजन क्या बोलेंगे, तो रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल बाय फ्लोइंग वाटर और विंड और अदर मींस इज कॉल्ड इरोजन। यानी हमारी हमारी जो भी सॉइल है उसकी टॉप फर्टाइल लेयर है, वो टॉप फर्टाइल लेयर का पानी का, हवा का, या तो समझ लो कि अदर मींस की वजह से खराब हो जाना, उसको बोलेंगे हम इरोजन। सो वेज टू रिड्यूस द सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन कैसे हम रोक सकते हैं, तो फर्स्ट वन इज ट्री शुड बी प्लांटेड ऑन द बैरन लैंड। यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले प्लांट और ग्रो मोर ट्रीज, पता है ना, ग्रो मोर ट्रीज, क्यों, क्योंकि ट्री के जो भी रूट्स है वो जमीन को पकड़ के रखता है, तो जहां पे पानी आ रहा है या जोर से हवा आ रही है तो वो ऐसा ऐसा नहीं निकल सकता ना, वैसा इरोड नहीं हो सकता, बिकॉज वहां पे झाड़ के रूट ने उसको बांध के रखा है। समझ रहे हो, झाड़ के रूट ने उसको बांध के रखा है। नेक्स्ट वन, trees trees should be planted on hilly regions to prevent soil from getting washed away। जैसे कि समझ लो कि आसाम और वो जगह पे है जहां पे हिली रीजन है, और वहां पे क्या होता है बेटा, पानी जैसे बारिश होती है पानी सब नीचे की तरफ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशन। जब पानी इस तरह से नीचे जाएगा तो पानी की स्पीड बढ़ती जाएगी, तो वो क्या करेगा, अपने साथ साथ सॉइल को भी लेता जाएगा, तो वहां पे भी फिर से ट्रीज को प्लांट करना है। इस तरह से देखो, तो इस तरह से हम सॉइल का इरोजन भी खत्म कर सकते हैं बाय टेरेस फार्मिंग। और भी पॉइंट लिखने तो आप लिख सकते हो बाय टेरेस फार्मिंग, ऑब्वियसली बाय बाय ऑब्जेक्टिंग देम विद हैवी स्टोन्स। मीन्स हम क्या करेंगे, रिवर के रास्ते में इस तरह से बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं तो पानी धीरे से जाएगा तो भी वो बच जाएगा। समझ रहे हो, ओके तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे हम सॉइल इरोजन रोक सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट सेक्शन, आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली, जहां पे हम बात करेंगे बड़े क्वेश्चंस की। ठीक है, तो सबसे पहले यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिराइव द इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। जब मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया था, तब मैंने आपको याद दिलाया था, तब मैंने आपको बोला था, तब मैंने आपको समझाया था कि बच्चों ये तीन में से एक क्वेश्चन अगर ना आए पेपर में तो पेपर फाड़ देना, ये मेरी जबान थी। आ गया यूनिट टेस्ट में, अरे बच्चों देखो स्कूल की एग्जाम में भी अगर एक भी इक्वेशन ना पूछे तो पेपर फाड़ देना, मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे यूनिट टेस्ट ने भी हमको सच्चा साबित किया है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी के बारे में। सबसे पहले कंसिडर द लीनियर मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी बॉडी एक लाइन पे एक लीनियर मोशन कर रही है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। अब देखो जो u इनिशियल वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, वहां पे हम बॉडी को क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। बॉडी को हम क्या करते हैं बेटा, एक्सेलरेट करते हैं। जैसे हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, और कुछ समय के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई, तो उसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। ओके, तो समझ लो, पहले फिर से बोल रहा हूं बेटा, देखो कि मैं घर से निकला तब मेरी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। फिर अचानक रास्ता खाली हो गया, मैंने अपनी बॉडी को एक्सेलरेट किया, तो 5 मिनट के बाद मेरी बॉडी होगी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो 20 मीटर पर सेकंड थी वो मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी। फिर मैंने एक्सेलरेशन की वजह से फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 40 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पे v और u फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो बॉडी है उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, जो मैंने पूरा ग्राफ का कंसेप्ट समझाया था, उसमें से हमने ड्रॉ किया था, जो कुछ इस तरह से मिलता है। सबसे पहले देखो, आपको लिखना भी थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन है, ये क्विक रिवीजन है, इसलिए मैंने थोड़ा कम लिखा है, आपको पूरा लिखना है। सबसे पहले कि लेट अस कंसीडर दैट on the graph point A showing the initial velocity of a body with u. So OA is the initial velocity. OA is the initial velocity at time t is equal to 0. After some time, due to uniform acceleration, the body is having final velocity as v. So final velocity is OC, और we can say BD। OC और BD दोनों सेम ही है, तो वो कितना है बेटा, V। वो कितना है बेटा, V। ओके, सो हमें पता है कि अब हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 1, टाइम इज इक्वल टू ओडी, यही बहुत बोल सकते हैं। सो यहाँ पे होगा स्टेप नंबर 1, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो एक्सेलरेशन इज अ चेंज, मैंने बोला था चेंज माने डेल्टा, डेल्टा माने फाइनल माइनस इनिशियल। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी कौन है, v है, इनिशियल कौन है, u है, अपॉन t है। अब जो नीचे t है ना, डिनोमिनेटर में t है ना, उसको लात मार के सामने भेज दो इक्वल टू में। तो जो इक्वल टू के दूसरे साइड डिवीजन में है, वो पहले साइड जाके क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो 80 इज इक्वल टू v माइनस u।
अब क्या करेंगे, माइनस यू को लात मार के इक्वल टू के दूसरी साइड भेज देंगे। सो यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगा हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सो एक छोटा सा स्टेप, 3 मार्क, खत्म कहानी। इतनी सी बात है कि acceleration is a change in velocity upon time, final minus initial, v minus u upon t, t को सामने भेजो, u को सामने भेजो, खत्म। here equation is gets proved, hence proved, let's go। so 9 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा है। ओके, now we are moving for the next question, question number 10। so draw neat and label diagram of animal cell। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपको एक वीडियो, जैसे ही ये स्लाइड खत्म होगी वहां पे मैं एक वीडियो साथ में रखूंगा। वैसे मैं क्या करूंगा बेटा, एक वीडियो भी साथ में रखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो कि किस तरह से एनिमल सेल होता है। डायग्राम देखोगे तो पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये डायग्राम को आसानी से ड्रॉ करने के लिए पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है, फिर दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है, फिर उसके अंदर तीसरा सर्कल ड्रॉ करना है। सबसे पहले बाहर का सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है। देखो ये लाइन फॉलो करो, सबसे पहले बाहर का सर्कल ड्रॉ किया हमने, ओके। उसके बाद हमने अंदर का सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद तीसरा सर्कल ड्रॉ किया, फिर हमने थोड़ा इस तरह से क्रोमोसोम्स दिखा दिए, ओके। और बाद में हमने AR दिखा दिया, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पे डॉट्स है वो है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पे डॉट्स नहीं है वो है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उससे थोड़े दूर हमें दिखाने हमारे सैक्स, यानी हमारे गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपर्चस। थोड़े से दिखा दो माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़े से दिखा दो लाइसोसोम्स, और बाकी तो आपको पता ही है, रिबोसोम्स दिखाना है, क्रोमोप्लास्ट दिखाना, अरे रिबोसोम्स दिखाना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोटोप्लाज्म दिखाना है, साइटोप्लाज्म दिखाना है। तो ये आसान सा डायग्राम है, ओके। इतना आएगा। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक लिंक भी आपको ऊपर दे रहा हूँ जिसमें मैंने पूरा एनिमल सेल का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे मैं वीडियो को टैग करके रखता हूँ, साथ में नहीं रखता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। So question number 11, what do you understand by water pollution, explain its effect। सबसे पहले water pollution क्या है वो समझते हैं, फिर उसके इफेक्ट समझते हैं। 14 नंबर का चैप्टर का है। So water pollution, the concentration of water bodies such as lakes, ponds, river usually due to human activity is called। तो यहाँ पे क्या करना है कि खराब हो जाना, यहाँ पे क्या होना, खराब हो जाना। यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन टाइपिंग में प्रॉब्लम है, पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर बॉडी स्पॉइल्ड सच एज लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर यूजुअली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज स्पॉइल्ड ऑफ वाटर पॉल्यूशन। और ये हम छोटे थे तब से 5वें स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वो सब कुछ, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन क्या है कि पानी का ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से गंदा हो जाना, इट्स अ वाटर पॉल्यूशन, सिंपल। पर वहां पे उसके इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो व्हाट आर इट्स इफेक्ट। so addition of undesirable substance such as fertilizer, pesticide used in farming, industrial waste contain harmful substance। so वहां पे क्या होता है, जैसे हम फार्मिंग की बात करते हैं, हमने डाले हैं कुछ फर्टिलाइजर्स, कुछ पेस्टिसाइड्स, जो उसकी वजह से क्या होता है वो सब जमीन में जाता है। और हम इरिगेशन करते हैं, इरिगेशन की वजह से क्या होता है वो वाटर पॉल्यूट करता है, ओके। 8th में आ गया। इस तरह से खराब पानी जो भी होता है वो क्या करता है, वो डिजीज करते हैं, कोलेरा, टाइफाइड जैसा डिजीज करते हैं, डेट्रियोटिव वेस्ट क्वालिटी, और वो वेस्ट क्वालिटी के पानी भी खराब हमें करता है। वो कोलेरा, टाइफाइड इस तरह से डिसीज क्रिएट करेंगे, ठीक है। Several human activities related to water sources lead to change such as reduction of oxygen in the level of water। यहाँ पे एक बात समझ लो कि कई बार ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, पानी के अंदर जो भी ऑक्सीजन डिसॉल्व है, जो भी ऑक्सीजन अंदर है वो ऑक्सीजन खराब, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। अब देखो, आप यहाँ पे खुले आसमान में रह रहे हो और हवा में पूरा ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से हम इजीली ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं। पर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सफोकेट होता है, तो हमारी लाइफ कितनी टफ हो जाती है। सेम सिचुएशन में जो पानी में रह रहा है, मींस जो भी मरीन लाइफ है, मरीन लाइफ को ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है, पानी में से। पानी में ऑक्सीजन जो भी है वो अगर कम हो जाएगा, व्हेन द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन रिड्यूसेस, तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली इट एडवर्सली, बहुत खराब तरीके से वो एक्वेटिक लाइफ को खराब कर रहा है। समझ रहे हो। So release of hot water by industries or cold water by the dams into the water bodies suddenly changes the temperature of the water bodies। Obviously कई बार क्या होता है, इंडस्ट्री जो भी होती है वो गर्म पानी को इस तरह से नदी में छोड़ देती है, या तो डैम्स के जो भी एकदम ठंडा पानी होता है वो जैसे रिलीज कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, अचानक आप समझ लो कि आप अचानक एसी में बैठे हो और आपके सामने अचानक कोई गर्म गर्म कुछ लेके आता था,
या तो आप गर्मी में और अचानक से आपको ठंडे में डाल देते हैं। तो इस तरह से जो एकदम ड्रास्टिक टेम्परेचर चेंज होता है, वो टेम्परेचर चेंज कई बार हम भी कवर नहीं कर पाते, तो ये छोटे से एक्वेटिक एनिमल कैसे कर पाएंगे। और जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर के चेंजेस उसके ब्रीडिंग में प्रॉब्लम करते हैं, मीन्स उसके रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम होगा, उसके एग्स में प्रॉब्लम होगा, उसके ऑफस्प्रिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, और साथ में सर्वाइवल भी उसका प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो यहाँ पे देखो हमने बात कर दी है फिर से वाटर पॉल्यूशन की। तो वाटर पॉल्यूशन सबसे पहले हमको भी परेशान करता है कोलेरा टाइफाइड जैसे डिसीजेस से। दूसरी चीज ऑक्सीजन का लेवल कम कर रहा है। तीसरी चीज वो क्या कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर चेंजेस ला रहा है, और वो टेम्परेचर चेंजेस आने की वजह से ऑब्वियसली उसका ब्रीडिंग और सर्वाइवल में प्रॉब्लम होता है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट। So, for example, egg and larva of the various animals gets affected by the change in water temperature। जैसा मैंने बोला कि टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर का चेंज, टेम्परेचर ऑफ वाटर चेंज होता है, उससे क्या होता है, उसकी ब्रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। उससे क्या हो रहा है, तो उससे उसके रिप्रोडक्शन, ऑफस्प्रिंग, एग, लार्वा सब कुछ अफेक्ट हो रहा है। So don't pollute water, at least not for you, for other living beings, for other marine life. Okay. So last section, section number D, 4 marker, answer in detail question number 12. So last question is, how can we separate a mixture of two immiscible liquid? Describe with the neat diagram method, the method of sublimation. सबसे पहले देखो, ये चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो प्योर मैटर को हम प्योर कब बोल सकते हैं, जब उसमें किसी भी तरह से इम्प्योरिटीज ऐड नहीं है। अगर इम्प्योरिटीज ऐड है तो हम क्या करेंगे, तो इम्प्योरिटीज ऐड है तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा। सो ये इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए उसके अंदर के सॉल्यूट सॉल्वेंट को अलग करना पड़ेगा। सो इट्स अ सेपरेशन मेथड, इट्स अ सेपरेशन मेथड। अब सेपरेशन मेथड में हमें सब्लिमेशन मेथड बोली गई है, ठीक है। सो सेपरेशन की बहुत सारे मेथड है, जिसमें से इमिजिबल लिक्विड है, तो इमिजिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम सब्लिमेशन मेथड की बात करेंगे, ठीक है। सो सब्लिमेशन मेथड में देखो, पहले तो सबसे पहले सब्लिमेशन क्या है, तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करे बिना डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसे सब्लिमेशन। सब्लिमेट कौन कौन हो रहा है, तो हमें पता है एमोनियम क्लोराइड है, नैप्थलीन बॉल्स है, फिर समझ लो कि हमारा कैम्फर है, ये सब कुछ है जो डायरेक्टली सब्लिमेट हो रहा है। तो सब्लिमेशन मेथड के डिफरेंशिएशन के लिए, या तो समझ लो कि सब्लिमेशन के सेपरेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे एक, सबसे पहले फनेल। क्या यूज करेंगे हम, फनेल, ठीक है। और फनेल को रखने के सबसे पहले देखो यहाँ पे डायग्राम में ही देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास बंसन बर्नर, फिर चाइना डिश, फिर ये हमारा समझ लो कि चाइना डिश के अंदर एमोनियम क्लोराइड और मिक्सर ऑफ एमोनियम क्लोराइड रखना है, हमें सॉल्ट रखना है, और उसके ऊपर फनल रख के उसको हमें कॉटन प्लग से बंद कर देना है और नीचे बर्नर रख देना है, ठीक है। इतनी बात इजी है। ओके, कैन वी गो फॉर नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आगे प्रोसीजर की। तो सबसे पहले देखो प्रोसीजर में होता है कि टेक अ ट्राइपॉड स्टैंड एंड प्लेस अ वायर गेज ओवर इट। तो वायर गेज को जैसे यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, सबसे पहले ट्राइपॉड को रख दिया, फिर उसके ऊपर हमने वायर गेज को रखा है, वायर गेज के ऊपर हमने चाइना डिश को रखा है, और उसके अंदर हमें मिक्सर रख देना है जिसमें सैंड है, सॉल्ट है, एमोनियम क्लोराइड है। फिर उसके ऊपर हमें क्या करना है, फनल को, ग्लास फनल को लेके उसको उल्टा रख देना है, और उसके ऊपर हमें क्या करना है, स्टीम होल जो भी है उसमें कॉटन प्लग को भर देना है ताकि स्टीम बाहर ना निकले, ठीक है। नाउ हीट द मिक्सर विद द बंसन बर्नर और स्पिरिट लैम्प। उसको गर्म करना है, जहां से, कैसे गर्म करना है, जब तक हमें अंदर फ्यूम्स ना दिखाई दे। क्योंकि फ्यूम्स है तो वो फ्यूम्स है, सबसे पहले यहाँ पे मिक्सर है एमोनियम क्लोराइड का, तो एमोनियम क्लोराइड का फिक्स फ्यूम्स रहेगा। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट सब्लिमेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और जैसे ही सब्लिमेट होना स्टार्ट हो रहा है, हम बर्नर को बंद कर रहे हैं। टर्न ऑफ द बर्नर एंड अलाउ द फ्यूम्स टू कलेक्ट ऑन द इनर साइड ऑफ द फनल। तो फनल के इनर साइड में हम उसको कलेक्ट होने के लिए जगह दे रहे हैं। अब क्या करना है, हमें एक बार ये हो गया, फिर फनल को रिमूव कर देना है, और उसके अंदर फनल के अंदर अगर देखेंगे तो हम एमोनियम क्लोराइड डिपॉजिटेड मिलेगा, जिसको हम कलेक्ट कर देते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास चाइना डिश में हो गया सॉल्ट एंड सैंड, और हमारा एमोनियम क्लोराइड सेपरेट हो गया है। फिर प्लेस द फनल अगेन ऑन द मिक्सर, हीटेड एंड कलेक्ट ऑल व्हाइट फ्यूम्स दैट कम्स आउट ऑफ द मिक्सचर। द प्रोसीजर विल कंटिन्यू टिल ऑल व्हाइट फ्यूम्स आर कलेक्टेड। On the further heating, no more white fumes are released, then left out mixture has only salt and
सैंड। यानी यहाँ पे हम काफी आसानी से एक चीज समझ रहे हैं कि ट्राइपॉड के ऊपर गोश्त को रखना है, फिर उसके ऊपर हमें क्या करना है, एक चाइना डिश के अंदर मिक्सर रख के उसको गर्म करना है, जिससे क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड इवेपोरेट सब्लिमेट हो रहा है। ठीक है, सो इसका रिजल्ट ये है कि सैंड, कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन और अल्टरेशन व्हिच इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो उसके सब हमें मेन बोले तो सब्लिमेशन है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो हियर पेपर इज कंप्लीटेड। आपको कुछ नहीं करना है, यूनिट टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन एक बार फिर से समझना है, प्रिपेयर करना है, मम्मी के सामने लिख के साइन करके पीडीएफ मुझे भेजने है, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ, कई चीज को मैंने फास्ट भगाया है क्योंकि ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो वीडियो 30 मिनट लॉन्ग हो गया, पर जो भी चीज समझा नहीं थी वो हमने काफी डिटेल में समझा दिया। और ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली इसका बैठा बैठा लिखना है, नहीं, कॉपी नहीं करनी है, आप अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हो, पर पेपर मस्त होना चाहिए। पेपर मस्ट बी मस्त। Okay, so if you have any queries, please feel free to contact us. Here I'm going. Thank you. That's it from my side, and best of luck for your examinations. Thank you.